नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो में। और आज का वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, and that is optical fiber, okay. And this is important because in our telecommunication industry we use this thing, and in medical instrument like endoscope we use this optical fiber there, okay. And it is also used to transmit the light, and optical fiber is the main and very important एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ दिस ऑप्टिकल फाइबर एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एंड हाउ इट वर्क्स, ओके। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस ऑप्टिकल फाइबर, ओके। एंड ऑप्टिकल फाइबर इज़ एन एक्सट्रीमली थिन एंड रेडियस ऑफ फ्यू माइक्रॉन्स एंड लॉन्ग स्टेड, ओके। ये थ्रेड की तरह होती है, एक थिन थ्रेड की तरह, ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास। दिस इज मेड ऑफ फाइन क्वालिटी ग्लास या क्वार्ट्स जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। क्वार्ट्स कोएटेड विद थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्ट्रैंड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट क्या हो रहा है वहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लार्जर एंड ग्रेटर देन, ओके। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा किससे? क्लैडिंग से, जो बाहर होगा। जनरल ओवरव्यू इज दैट कि optical fiber is like a pipe, okay, and there is a core and there is a coating of a material, coating of a glass or quartz, whatever it is, okay, and that coating material will have the less refractive index as compared to the that center core, okay. देखिए, let's understand the optical fiber through a diagram, okay, and let me draw it. Let this is your core, okay, and this is your main material, okay, through which let this is our core, okay. Let me shade it, it's like that. This is our core, okay. And what happened? Core is coated or surrounded, coated or surrounded by a another layer like this, another layer material, देखिए, like this, okay. And let me draw. This is another material, okay, through which we coated that central core, okay. Okay, look at this is your shape like this, okay. And these are the main part of this optical fiber, okay. देखिए अब क्या हो रहा है, दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड कोर, ओके, एंड दिस आउटर पार्ट, ओके, द मटेरियल विच इज कोटेड अराउंड दैट कोर, ओके, दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग, ओके। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि द मटेरियल, जिस मटेरियल का कोर बना हुआ है उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल दैट इज यूजिंग in cladding, okay, that is using to coated that core, okay. And this all the arrangement is surrounded by a plastic, okay, and this represent the whole optical fiber, okay. Now understand what the refractive index, let core refractive index is n1 and this cladding material refractive index is n2, okay. And what is the condition here for the optics, for the total internal reflection? That is the refractive index of core n1 will be greater than n2, okay. It means that when the refractive index of the core is higher than the outer layer, it means that there is total internal reflection, means denser medium is what, whose refractive index is greater, okay, like core refractive index n1 that is greater than the n2, okay. It means that denser medium is what, n1, okay.
N1 is more denser than N2. When N1 is more denser than N2, it means that there will be total internal reflection. हम लोगों ने ऑलरेडी एक कंडीशन स्टडी की है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, वो ये है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, मीन्स हाई डेंसर टू लोअर डेंसर मीडियम. ओके, सो दिस इज बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. ओके, अब देखिए प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है. दिस इज प्रिंसिपल ऑप्टिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये बेस्ड होता है. ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्किंग किस तरह से होती है इसकी. देखिए यही समझते हैं वर्किंग को डायग्राम में ही. अब देखिए इस तरह से अगर आपकी लाइट आ रही है इस तरह से, जैसे ही ये इस डेंसर मीडियम में इस N1 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका है कोर में ट्रेवल करिए इस तरह से यहाँ पर. ओके, इसके सराउंड में ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस मीन्स दैट लाइन विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम. ओके, रेयर एंड डेंसर मीडियम. ओके, जब ये यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, ये लाइट इस तरह से ट्रेवल करी और जब यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है तो यहाँ से भी इस तरह से जा रही है, यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है इस इंटरफेस पे, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से. ओके, कहने का मतलब क्या है कि लाइट उस कोर के अंदर ही ट्रेवल कर रही है. ठीक है, वो बाहर नहीं जा रही है. देयर इज नो एनी लॉस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट. ओके, इट मीन्स दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है बैक उसी कोर के अंदर ही रह रही है, वो बाहर क्लैडिंग वाले मटेरियल में नहीं जा रही है. ठीक है, जिस मटेरियल को हमने बाहर उसके चारों ओर लपेटा है. ठीक है, हम लोगों ने उसे इसीलिए लपेटा है ताकि वहां पर क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो. ओके, और हम लोगों ने स्टडी किया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, मीन्स हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम में जाएगी. ठीक है, देखिए जनरली हम ये मानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 किसके बराबर होता है, 1.458. ओके, और जो N2 होता है जिस मटेरियल को हम यूज़ करते हैं कोटिंग के लिए, ठीक है, उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जनरली दैट वी 1.440. ओके, मीन्स दैट इतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है, बिल्कुल बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत ही मिनिमम डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ओके, अब देखिए इस तरह से काम करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से वो लाइट कंटिन्यूसली आगे जा रही है. ठीक है, देयर इज नो एनी लॉस ऑफ दैट लाइट. ओके, अब हम बात करते हैं कि यूजेस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. पहला यूज है कि दिस इज यूज टू ट्रांसमिट द लाइट विदाउट एनी लॉस इन इट्स इंटेंसिटी ओवर द लार्ज डिस्टेंस. क्या हो रहा है, हम लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एनी लॉस ऑफ इट्स इंटेंसिटी. ओके, एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जो मैं आपको बता रहा था एंडोस्कोप में. ओके, endoscope used by the doctor to visually examine the stomach and intestine. Okay, क्या होता है कि एक लाइट पाइप होती है. ठीक है, लाइट पाइप के अंदर क्या होगा, आपका ऑप्टिकल फाइबर होगा और उसे हम क्या डालते हैं, अपने मुंह के अंदर डालते हैं, हम इंसर्ट करते हैं उसको अपने स्टमक में. ठीक है, और जब हम उसको अपने स्टमक में इंसर्ट करते हैं और उस पाइप से हम लाइट पास करते हैं एंड दैट लाइट पासिस थ्रू दैट पाइप. ओके, इनसाइड अवर स्टमक. And then what happened, that light reflect back, and when that light reflect back, that gives us the visual image, visual examination of that particular part inside our stomach. Okay, क्या हो रहा है यहाँ पर, उस लाइट की रिफ्लेक्शन, लाइट पाइप एक लाइट की पाइप है. ठीक है, उसे आप अपने स्टमक में डाल रहे हो. ठीक है, डॉक्टर उसको अंदर डालता है ताकि वो विजुअली एग्जामिन कर सके आपके स्टमक और इंटेस्टाइन को. ओके, वो लाइट सेंड करता है और वो लाइट सेंड रिफ्लेक्ट होती है वापस. वाई, बिकॉज देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से वापस लाइट होती है एंड लाइट वापस आ रही है. लाइट जब वापस आती है तो क्या होता है, हमें अंदर का पूरा पिक्चर दिखती है, पूरा व्यू दिखता है हमको. ठीक है, उसकी वजह से हम एग्जामिन कर पाते हैं, डॉक्टर एग्जामिन कर पाता है कि विच काइंड ऑफ डिजीज दैट पर्टिकुलर पर्सन हैव. ओके, अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन. ओके, टेलीकम्युनिकेशन मीन्स जहाँ पर आपका ऑडियो एंड वीडियो, हम सिग्नल्स को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक सेंड करते हैं. क्या हो रहा है यहाँ पे, एक आपका डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है आपका लाइट सिग्नल में. ओके, ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है लाइट सिग्नल में एंड दैट लाइट सिग्नल इज पासिंग थ्रू दैट ऑप्टिकल फाइबर. एंड व्हेन दैट लाइट सिग्नल इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ओके, that is help in the to send that audio and video message, whatever electrical इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करती हो, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर के द्वारा. ओके, और वो लाइट सिग्नल को ट्रेवल और दूर डिस्टेंस तक ले जाया जाता है किसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर.
ओके। एंड फोर्थ वन इज ऑप्टिकल फाइबर आर यूज टू सेंड ट्रांसमिट द इमेज, जो मैं आपको बता रहा था। इमेज किसकी फॉर्म में होगा? आपका इमेज भी आपका एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, या ओ सॉरी नो, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इमेज नहीं होगा, इमेज आपका उसी फॉर्म में होगा, लाइट फॉर्म में ही, ठीक है। इसको आप क्या करते हो कि ऑप्टिकल फाइबर से आप इमेज को सेंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एंडोस्कोप जब डॉक्टर हमारे पेट के अंदर डालता है वो लाइट सेंड करता है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो अपने साथ एक इमेज लाता है वो अंदर से, ठीक है, और उस इमेज को हम एग्जामिन करते हैं, वो हमें विजुअल इफेक्ट देता है, ठीक है। वही यहाँ पर हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज टू ट्रांसमिट द इमेज, ओके, ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के ट्रांसफर के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ओके, दिस ऑल वॉज द यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।